Good morning, students. My name is Shivani Sharma. Today I will explain you a chapter number 4, materials, metals and non-metals. Now, in this chapter, I will explain these things like objects, classification of elements, physical properties of metal and non-metals, chemical properties of metal and non-metals, reaction with water, oxygen, dilute acid and bases, displacement reactions, uses of common metals and non-metals. Now, what is material? Material means जो हमारे जो भी चीज हमारे आसपास होती है, जो किसी भी सरफेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को किसी भी जगह को घेरती है, वो क्या कहलाती है? मटेरियल कहलाती है. We already know that all materials are made up of only a few basic units called elements. जो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो वो होते हैं जो किसी मटेरियल से की बेसिक यूनिट से मिलकर बनते हैं. And elements consist of only one kinds of atoms and can not be broken down into a similar substance by chemical and physical method. एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन एटम को ब्रेक ना कर पाए. There are about 114 known elements till date, like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, sodium, magnesium, aluminium, sulfur, phosphorus, zinc, silver, gold, mercury, and chlorine are some of the commonly known as elements. Classifications of elements. All the objects around us are made of some materials. जो हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मटेरियल है. मटेरियल से मिला मटेरियल है. डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसा डिफरेंट मटेरियल होगा, अलग अलग कोई भी मटेरियल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी. Depending upon appearance, hardness, lusters, and a few other properties, material can be classified into a metals and non-metals. मटेरियल्स क्या होती हैं? डिपेंड करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर, जैसे उनके हार्डनेस पर, लस्टर्स पर, लचीलेपन पर, चमक पर, या फिर उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज पर. उन प्रॉपर्टीज के द्वारा हम क्लासिफाइड कर पाते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है. There are some elements which exhibit the properties of both metal and non-metals. They are called metalloids. जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हुआ करते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. Here, what is metal? Metal are generally shiny, malleable and hard. मेटल वो होती हैं जो जनरली साइन करती हैं, सॉफ्टेबल होती हैं, मुलायम होती हैं और हार्ड होती हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, यूरेनियम एंड जिंक. Some metals exist exceptional properties like mercury is the liquid form and sodium is very soft. मेटल्स की कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे मरकरी है जो वो लिक्विड फॉर्म में होती है और सोडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. ये मेटल्स में एक्सेप्शन होते हैं. With a low density, mercury is in fact the only metal that is not a solid. Mercury ही एक ऐसा मेटल होता है जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है. Now, non-metals. They do not conduct heat or electricity very well. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं. नॉन मेटल्स आर टिपिकली ब्राइटल एंड not easily modulated into a space. इनका हम स्पेस में मॉड्यूलेट इजिली नहीं कर पाते हैं. Example of non-metals element are oxygen, hydrogen, sulfur, nitrogen, carbon, bromine.
Here, these metals are not hard and shiny. They exist in a gas and solid form, but here bromine is exceptions case. Bromine is also non-metal, but it exists in a liquid phase. Metalloids, there are some elements which have a characteristics of both metal and non-metal. They are called metalloids. मेटालॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. मेटालॉइड्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये दोनों इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. This semiconductor properties means make materials very useful and computer chip material. ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर होने के कारण ये क्या होती हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं as a computer chip material. Example of metalloids elements are silicon and boron. Now explain the physical properties of metal and non-metal. Metals and non-metals can be identified on the basis of appearance and other physical properties like hardness, structures, malleability, ductility, and sovereignty and conductivity, and so on. Let us discuss in a brief. Physical state. Physical state is a condition which is exist in a room temperature. Physical state वो होती है जो elements room temperature पर exist करें. Metal and metal are generally solid except metal जो होती हैं वो solid form में exist करती हैं. But mercury और गैलीनियम को छोड़कर सारी metals solid form में होती हैं. बट मरकरी और गैलीनियम जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड और गैस फॉर्म में होती हैं, बट सॉलिड और गैस फॉर्म में जो होती हैं, सॉलिड फॉर्म में कार्बन और सल्फर, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन एंड गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती हैं. नाउ स्ट्रेंथ होता है ताकत, क्षमता. मोस्ट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती है. एक्सेप्शन होता है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. इन्हें हम इजिली कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा, चाकू से हम इन्हें इजिली कट कर सकते हैं. Non-metals are not as strong as metals, but diamond is an exception and hardest known as substance. Non-metals जो होती हैं वो strong नहीं होती हैं, but डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, जो कि क्या होता है, एक्सेप्शन है, क्योंकि डायमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है. लस्टर्स मतलब होता है चमक. चमकीले पदार्थ जो होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, शाइनी. Most metals can be polished to give a characteristic metallic lustre, जो कि क्या होती हैं, उनका कैरेक्टर ही होता है क्या, चमकीला होना. Metals such as a golden, silver and copper all have a lustre, that is they have ability to shine and reflect light. ये क्या होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होती है, मेटल है. ये क्या है, चमकदार होती हैं और इनकी एक एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करना. ऑलमोस्ट नॉन मेटल हैव अ डल सरफेस. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डल सरफेस की होती हैं. एज most of them occurs a powder and gas form, that not a polished like metals. वहीं नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन. ये क्या होते हैं, चमकीले पदार्थ होते हैं, जिसे इनमें क्या होता है, लस्टर्स होता है. Malleability, the property of metals by which they can be beaten into a thin sheets is called a malleability. Malleability वो कहलाती है एक मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या करते हैं, मेटल को थिन लेयर में पीट कर बिल्कुल पतली से पतली शीट बनाई जाती है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये एक मेटल की प्रॉपर्टी हुआ करती है. जैसे गोल्डन एंड सिल्वर आर द बेस्ट malleable मेटल. ये क्या होती हैं, गोल्डन और सिल्वर बेस्ट इसकी मेटल्स होती हैं.
और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन मेलेबल होती हैं। दे आर brittle and they break into pieces of hammer। जैसे ही नॉन मेटल्स को आप हम हमर से मारेंगे पीटेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है लचीलापन। डक्टिलिटी मतलब होता है लचीलापन। मेटल कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स। मेटल क्या होती हैं, थिन वायर में मेल्ट हो जाती हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज नोन एज अ डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटल की डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी डक्टाइल। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। जैसे ही नॉन मेटल को आप ये नॉन डक्टाइल होते हैं क्योंकि इनको आप जैसे ही स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। नाउ सोनिटी, the substance which produce a ring sound when stuck with a hard material are called a sonorous substance। ये क्या कहलाता है, जैसे ही इसे एक रिंग फॉर्म में सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसे आप रिंग मटेरियल को रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। The quality of ring sonorous is called a sonority। Objects such as the wind, cymbals, and certain musical instrument make use of the properties of metal। इससे क्या क्या बनाई जाती हैं, बेल बनाई जाती हैं, ड्रम्स बनाई जाती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाई जाती हैं। Non-metals do not produce a ringing sound and when stuck hard and hence they not sonorous। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स रिंग फॉर्म में साउंड कनेक्ट नहीं करती हैं, ये क्योंकि हार्ड होती हैं। अब आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं काई की, हीट की। लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर एक्सेप्शंस एंड दे एंड वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर होते हैं ये एक्सेप्शन हुआ करते हैं मेटल्स में, जो कि वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। गुड क्वालिटी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज मेड फ्रॉम कॉपर वायर्स। ये क्या होती हैं, कॉपर वायर्स में बहुत ज्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। नॉन मेटल्स आर वेट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हुआ करती हैं वो वेट कंडक्टर्स होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। lead and tungsten are metals but do not show a conductivity। जो lead और tungsten होता है ये भी मेटल होती हैं बट ये कंडक्टिविटी शो नहीं करती हैं। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल हुआ करता है और ये एक्सेप्शन होता है काय का, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। Now melting and boiling points। metal have a high boiling point and melting points। जो metals होती हैं उनका boiling point high होता है और melting point भी high होता है। Mercury is an exception having a low boiling point। Mercury क्या होती है, liquid form में होती है, इसीलिए इसका जो boiling point होता है वो क्या होता है, कम होता है। Sodium and potassium are exceptions having a low melting point। ऐसे ही क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। दिस अलाउ अ मेटल टू बी मॉड्यूलेटेड इनटू अ डिफरेंट शेप बाय हीटिंग और कूलिंग। नॉन मेटल जनरली हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल का क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा हाई हुआ करती हैं।